Hello dear students, how are you? I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear students, last time we started unit general principles and extraction of metals or elements. Dear students, we have studied about the metallurgy and we have also studied about the various ores with their chemical formula and principal ores with their formulas, and I gave homework to you for remembering the ores of the given metals. I hope you all have learned that topics. Today we are going to start next topic, that is metallurgy. डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. यहाँ पर हम थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हैं, इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स from their ores is called metallurgy. Process of extraction of metals from their ore is called metallurgy. यानी कि मेटल्स को उनके ओर से सेपरेट करने के प्रोसेस को, एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेटलर्जी कहा जाता है. Dear students, we have already studied that what is the difference between ore and mineral. Ore is that from which metal can be extracted easily and economically. Dear students, ore are mainly present in earth crust. In earth crust, metal ores are not present in pure form. They are mixed with some impurities, earthy impurities. That impurities are called as gangue और मैट्रिक्स. तो हम नेक्स्ट लिखेंगे मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स भी लिखते हैं इसको, गैंग भी लिखते हैं, GANGUE, गैंग. द impurities which are present along with metal ores are called गैंग और मैट्रिक्स. इसमें हम क्या बोलेंगे? गैंग और मैट्रिक्स कहा जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर्स वेरियस स्टेप्स आर यूज्ड, एंड स्टेप्स यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ दीज इम्प्योरिटीज आर नॉट सेम फॉर ऑल द मेटल ओर्स because it depends upon the nature of metal and impurities present along with the ore. So depending upon the nature of metal, ore and impurities, steps are of different types. So dear students, in spite of that, some common steps are used in the metallurgical process are as follows. Next हम लिखेंगे steps for metallurgical process. Metallurgical process के लिए जो स्टेप्स है, फर्स्ट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर. सेकंड इज कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ore. And third is extraction of crude metal from concentrated ore. And the last one is, fourth one is purification of crude metal into pure form. So dear students, these are 4 general steps which are followed for the extraction of each metal ore. First is crushing and grinding of ore, second is concentration or beneficiation of ore,
and third one is extraction of crude metal from concentrated ore, and fourth one is purification of crude metal into pure form. Dear students, we are going to discuss these steps one by one. First is crushing and grinding of ore. First is crushing and grinding of ore. Crushing and grinding of ore. Dear students, metal ores are generally found in form of large lumps. Lumps में ढेर like stone like masses की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो टू convert them into powdered form or in fine powdered form, we have to crush and grind them to make them of powder form and to make them in fine particles. So fine particles की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग करनी पड़ती है. मेटल ओर्स आर जनरली फाउंड in form of large lumps. So to convert them into fine powdered form, we have to क्रश एंड ग्राइंड देम. हमें उन्हें क्रश और ग्राइंड करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज सेकंड वन, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट जो है ये इजी था, सेकंड जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर. Concentration or benefication of ore. As we have already discussed that some earthy impurities or other impurities are also present along with the metal ores. So to remove the metal impurities from the metal ores or to increase the concentration or amount of metal into metal ore, we have to remove these impurities from the metal ore. So मेटल ओर जो है उनके साथ में इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होती हैं उनको रिमूव करने के लिए जो स्टेप्स यूज किया जाए, जो मेथड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर और बेनिफिकेशन ऑफ ओर. तो हम क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अर्थी इम्प्योरिटीज ब्रैकेट में लिखेंगे गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम द मेटल और इज कॉल्ड कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर. अर्थ इम्प्योरिटीज या फिर गैंग को रिमूव करने के जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ ओर वी यूज वेरियस स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर इज सीविंग और हैंड पिकिंग. Sieving or hand picking. Sieving or hand picking method is general method which is used to remove large size particles earthy impurities. लार्ज साइज की अर्थी इम्प्योरिटीज को मेटल ओर में से रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है. जैसे कि एज यू नो वी रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द राइस. जैसे कि हम चावल जब बनाते हैं, चावल को बनाने से पहले उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं बाय हैंड पिकिंग. जैसे कोई मिट्टी है या स्टोन लाइक पार्टिकल्स है उनको हम हाथ से उठा करके रिमूव करते हैं. इन द सेम वे इफ लार्ज साइज इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट
then that can be removed from the metal or by hand picking or by sieving. sieving का मतलब कि एक पार्टिकुलर जो है पोर्स या सीव साइज जो है उसमें से पास करके हम इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं और मेटल और उसको सेपरेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज सीविंग और हैंड पिकिंग. इट इज यूज्ड टू सेपरेट large sized impurities by using sieving or hand picking. Second one is hydraulic washing or levitation या gravity separation. Second method is gravity separation or levitation. 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 Dear students, as the name suggested, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ग्रेविटी सेपरेशन. ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस दैट दिस मेथड is based on the difference in specific gravities of or particles and gang particles. ये जो मेथड है, इस मेथड में और के पार्टिकल्स और गैंग के जो पार्टिकल्स हैं, मैट्रिक्स के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी ग्रेविटी के अंदर, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस के ऊपर बेस्ड होता है. जनरली मेटल और के पार्टिकल्स होते हैं दैट आर हैवियर एंड अर्थ इम्प्योरिटीज आर ऑफ लाइटर. दिस मेथड इज generally used for metal ores having heavier ore particles than lighter gang particles. तो ये जो मेथड है जनरली हैवियर और पार्टिकल्स उन मेटल ओर के लिए यूज किए जाते हैं जिनमें मेटल ओर के पार्टिकल हैवी होते हैं और गैंग के पार्टिकल लाइटर होते हैं. दिस इज जनरली यूज्ड फॉर मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, जिनके अंदर पार्टिकल जो और पार्टिकल्स हैं दैट आर हैवियर एंड इम्प्योरिटी पार्टिकल्स आर लाइटर. एज द नेम सजेस्टेड, ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन, मेनली इसके अंदर टू मेथड जो है यूज किए जाते हैं. द टू मेथड यूज इन दिस मेथड आर एज फॉलोज. डियर स्टूडेंट्स, the process by which lighter impurities are removed from heavier ore particles by washing with water is called hydraulic washing और gravity separation और levitation. यानी कि वो प्रोसेस जिसमें लाइटर इम्प्योरिटीज को हैवियर और पार्टिकल से रिमूव किया जाता है वाटर के साथ वॉश करके, दैट इज कॉल्ड एज, तीन नाम है इसके, हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसको हम ग्रेविटी सेपरेशन क्यों बोलते हैं. इन दिस मेथड जनरली टू कॉमन मेथड यूज करते हैं. फर्स्ट इज विल फ्ले वॉशिंग, सेकंड इज हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन. तो पहले हम विल फ्ले वॉशिंग देखते हैं. ए विल फ्ले टेबल इज ए वुडन टेबल हैविंग ए स्लैंटिंग फ्लोर ऑन विच लॉन्ग वुडन स्ट्रिप्स कॉल्ड रिफल्स और क्लिट्स आर फिक्स्ड. इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग जो है वुडन टेबल होती है जिसका फ्लोर जो है, फ्लोर कैसा होता है जिसका,
उसके फ्लोर के स्लेंटिंग होता है, ऐसे होता है फ्लोर, ऐसे ही स्लेंटिंग फ्लोर होता है, जिसके ऊपर स्टैंडिंग जो है ऐसे रिपल्स जो है प्लिट्स या रिपल्स फॉर्म बने होते हैं, जैसे कि सीढ़ियाँ होती है ना से, तो इस तरीके से रिपल्स बने होते हैं। द पाउडर और इज मिक्सड विद वाटर, पाउडर को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और ऊपर से वन एंड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन हैवियर और पार्टिकल्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द रिपल्स, जो रुकावट है उसके बीच में तो और क्या हैवियर पार्टिकल रुक जाते हैं और इम्प्योरिटीज आर वाश्ड अवे विद वाटर, वो वाटर के साथ वॉश हो जाती हैं। इस तरीके से जो है इम्प्योरिटी जो से रिमूव हो जाती है फ्रॉम द। और सेकंड इज हाइड्रोलिक वॉशिंग और नेविगेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, इन हाइड्रोलिक वॉशिंग और नेविगेशन हाइड्रोलिक क्लासीफायर जो अपरेटस है आपके सामने दिखाया गया, इसको बोला गया है कंसिस्ट ऑफ लार्ज कोनिकल रिजर्वायर। इसमें लार्ज कोन के आकार का एक रिजर्वायर है, कंटेनर है, फिटेड विद एन और इनलेट, और इनलेट जिसमें से और को अंदर डाला जाएगा, पाउडर और को और इनलेट हो गया ये। इट इज प्रेजेंट एट टॉप एंड concentrated ore is removed from that side, water is introduced from the bottom side. Along with these two inlets, outlet for gangue and ore concentrated ore are also given. So dear students, in this method powdered ore is dropped through a hopper. ये जो हॉपर है मैं जनरली समझा देता हूँ, इसमें पाउडर ओर को यहाँ से हम ऐड करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ से फास्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये फास्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर जब इंट्रोड्यूस करेंगे, ऊपर से पाउडर ओर आ रहा है तो वाटर के साथ मिक्स होकर के क्या होगा, और पार्टिकल्स आर हैवियर, तो वो तो नीचे की तरफ आएंगे एंड लाइटर इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड अलोंग विद स्ट्रीम ऑफ वाटर। लाइटर इम्प्योरिटीज वाटर के साथ मिक्स होकर के यहाँ से रिमूव हो जाएंगी एंड और पार्टिकल हैवी होने की वजह से वो डाउन हो जाएंगे और नीचे यहाँ कंसनट्रेटेड ore की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें सेपरेशन की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पर ये जो शेप जो है कोनिकल शेप क्यों ली गई है, बिकॉज वाटर जो यहाँ से आ रहा है वो फास्ट स्ट्रीम आ रही है, तो कोनिकल शेप क्या है, उसकी वेलोसिटी ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए कोनिकल शेप दी गई है। इस तरीके से जो है और पार्टिकल स्ट्रीम के साथ नहीं जा पाते और सिर्फ लाइटर इम्प्योरिटी पार्टिकल्स आर रिमूव्ड अलोंग विद stream of water, but ore particles are settled down and concentrated from that side. So dear students, we have discussed today, this is enough for today. Remaining methods we will discuss next time. Thank you and have a nice day.